Hello. So, dear students, in this video we will see very important De Moivre's theorem. So, De Moivre's theorem is mainly used to raise the power of complex number. We can now find out any power of z by using this De Moivre's theorem. So, let's see. Uh, we know if z equal to r into cos theta plus I sin theta. So this is the complex number in polar form that can be written as r into e की power I theta, that is in Euler form. Okay. Suppose I want to find out the z square. So z square means z into z. Whenever this is the complex number or this is the complex number, this theta, where theta is argument of z. Okay, so theta is argument of z. Now we are multiplying z with the z. So this is the complex number, this is complex number. So by using the argument property, z into z will be argument of z plus argument of z. Simple. We have seen this property, that is argument of z1 into z2 equal to argument of z1 plus argument of z2. Yeah, we can also use like that, z square equal to 2 into argument of z. This is argument of z. So 2 theta. So finally z square has the argument as 2 theta. So therefore we can use now polar form or Euler form to find out the z square directly. Correct me? So dear students, therefore that can be written as r into r is r square, and this will be e to the power I 2 theta, or you can say that r square into cos 2 theta plus I sin 2 theta. Got the point? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, z को r e की पावर I थीटा इंटू r e की पावर I थीटा, दैट इज इक्वल टू r स्क्वेयर e की पावर I थीटा प्लस e की पावर I थीटा, देयरफॉर e की पावर I2 theta. Got the point? So simple algebra we can apply over here and we can find out z square. So how z into z, algebraically we have seen this is equal to r square e की power I2 theta. As we know that in the Euler form or in the polar form, if this is the polar form and this is the Euler form, then theta is the argument of z. Now z square is r square e to the power I 2 theta, that means 2 theta is its argument, and r square is of course is modulus. Got the point? Fine. Again, you can also use this argument property, that argument of z square is 2 into argument of z. Therefore, the argument of z square will be 2 theta, as theta is the argument of this z, as it is in the polar form or in the Euler form. Then r is the modulus of z and theta is argument of z. Fine. So, how easily we can find out the z square by using the Euler form and polar form? Correct? Similarly, z cube you can find out. Z cube will be r cube, that will be cos 3 theta plus I sin 3 theta. R you can written as r cube e to the power I 3 theta. Got the point? Very simply. And hence we can do like that. Zn. Zn क्या हो जाएगा? R की power n cos n theta plus I sin n theta, or you can write as r की power n e की power I n theta. So in that way you can multiply the complex number, and it is very easy if you write the complex number in polar form or in Euler form. Correct? So but here what we are observing that we are raising the power of z to the positive natural numbers only. Okay, but it is also true for z की power 0. When n is 0, so n is 0, मतलब क्या हो जाएगा? z की power 0, r की power 0, ये 1 हो गया, cos 0, ये 1 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1. So now
This is true for whole numbers and similarly it is true for integers, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू होगा. तो फाइनली दिस z की पावर n इक्वल टू r की पावर n इंटू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा व्हेन z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा. इसको नोट कर लीजिए. ठीक, नोट इट प्लीज. फाइन. तो अभी यहाँ से आपने पूरी अलजेब्रा को चेकआउट किया और कोई भी पावर कॉम्प्लेक्स नंबर की यू कैन फाइंड आउट नाउ वेरी इजीली. तो व्हाट इज दैट? इफ z इक्वल टू r इंटू ई की पावर आई थीटा, सो दैट विल बी गिव z की पावर n इक्वल टू r की पावर n ई आई एन थीटा. एक तो ये ठीक है, या आप z इक्वल टू r इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा होगा. सो z की पावर n विल बी r की पावर n ई की पावर आई एन थीटा. ठीक है, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो देन z की पावर n विल बी r की पावर n cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. राइट, ओके. और यहीं पे z इक्वल टू z बार की बात करेंगे तो z बार आपका, अगर ये z बार है, ये भी z बार है, तो r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. ठीक है, सो z बार की पावर अगर n करेंगे, सो r की पावर n इंटू कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. सो n इज इंटीजर, n इज इंटीजर. इंटीजर्स के लिए अभी तक के हमने चेकआउट कर लिया है कि ये जो डी मोवरी थ्योरम बोलता है कि यू कैन फाइंड आउट द एनी इंटीग्रल पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z in that way. So once you write the complex number in polar form or in Euler form, you can easily find out any integral power of complex number like that. Correct? Okay, fine. इसको भी नोट कर लीजिए. और अब आते हैं रियल नंबर्स के ऊपर. मतलब अभी मुझे इस फॉर्मूले को चेकआउट करना है. ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आगे मैं और डिस्कस करूंगा कि अगर z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, देन व्हाट इज z की पावर 1 अपॉन n. मतलब वी आर फाइंडिंग दी nth रूट ऑफ दिस z, nth रूट ऑफ z. ओके, तो nth रूट ऑफ z मतलब there will be n roots of the equation z to the power n, that is equal to something like that. So z की पावर 1 अपॉन n निकालना है, तो that will be r की पावर 1 अपॉन n and that will be cos. अब इसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ. cos 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा divided by n, where k is taking value from 0, 1, 2, 3 and n minus 1. So यहाँ तक कि k की n values है, तो we will put the different values of k over here so that we can find out the n roots. Okay. So we will discuss a different lecture on this nth root of unity. But just make the note of this, that is if you want to find out the z की power 1 upon n, so this can be find out at r की power 1 upon n. This is cos 2k pi plus theta by n. See, अगर आप यहाँ 1 by n करते तो सीधा थीटा बाई n आ जाएगा, थीटा बाई n आ जाएगा, है ना. आपको n रूट्स की बात करनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो आप इसको z की पावर 1 अपॉन n कैसे लिखेंगे? r की पावर 1 अपॉन n cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई n, वेयर k इज टेकिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू दी n माइनस 1. फाइन, नोट इट. अब हम सीधा पावर्स में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं. तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ. ठीक है साहब. तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे
ठीक है। सो फाइंड 2 into cos 3 pi by 4 plus I 2i into sin 3 pi by 4 और इसकी पावर 3। देखिए पावर 3 निकालना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आपने डी मोर्स थ्योरम लगा दिया तो पहले तो 2 की पावर क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। तो cos 3 pi by 4 प्लस आई साइन 3 pi by 4 और इसकी पावर 3, ठीक है साहब। तो ये तो 8 हो गया। अब यहाँ पे फिर से डी मोर्स थ्योरम लगाएंगे तो cos 3 pi by 4 मतलब pi by 4 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 9 pi by 4 आ जाएगा, 9 pi by 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाइड होगा ना, 9 pi by 4 प्लस आई साइन 9 pi by 4, ये आ जाएगा। अभी आपने डी मोर्स थ्योरम लगा दिया, आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 9 pi by 4 कितना होता है, cos 9 pi by 4 और sin 9 pi by 4, इसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सब आते, तो ये तो हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा cos pi by 4 है तो 2 pi प्लस pi by 4, ये ठीक है, 9 pi by 4 प्लस आई साइन, ये हो जाएगा 2 pi प्लस pi by 4, ये ठीक है, 9 pi by 4 फाइन। तो अब आप यहाँ चेकआउट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि 2 pi प्लस में रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है साहब। तो ये हो गया 8, ये बन गया cos pi by 4। अब इसका साइन देखना है, यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 2 pi प्लस pi by 4, 2 pi और फिर प्लस pi by 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस में होते हैं तो ये साइन प्लस में ही रहेगा। यहाँ पे आते प्लस, ये आई साइन pi by 4 होगा। अब यहाँ पे भी आते 2 pi प्लस pi by 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है साहब। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज 8, cos pi by 4 भी 1/√2 होता है और sin pi by 4 भी 1/√2 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर फाइनली, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकाल लिया यूजिंग डी मोर्स थ्योरम। नोट कर लीजिए, सेकंड प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 4√2 हो जाएगा प्लस आई 4√2, ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए सेकंड प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए साथ में चलिए। इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड वन इज इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 इज a complex number such that argument of z is pi by 4। फाइन, argument of z कितना है, pi by 4 है। देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ठीक है साहब। रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर निकालना है। z स्क्वायर है तो मैं अब डी मोर्स थ्योरम इजीली लगा सकता हूँ। आर्गूमेंट ऑफ z दिया हुआ है तो मैं इसको z को पहले मैं लिख देता हूं r इंटू सीधा सीधा e की पावर i पाई बाई 4, करेक्ट है क्या, ठीक है। तो z स्क्वायर निकाल लो, z स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर e की पावर i बाई 4, i पाई बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो दिस इज r स्क्वायर e की पावर i पाई बाई 2, e की पावर i पाई बाई 2 आप सब जानते हैं, ये सीधा सीधा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। फिर मैं लिख देता हूँ साइन पाई बाई 2 ई टू द पाई बाई 2, आई आता है, आई आता है कि नहीं आता है, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर, आई के साथ में ये आर स्क्वायर सिंपली है मतलब प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर सिंपली 0 होगा, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर सिंपली 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करता हूँ। बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने डी मोर्स थ्योरम लगा लिया, एलर फॉर्म लगा दिया तो कोई भी पावर को आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम में क्या सिचुएशन दी हुई है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। थर्ड वन इज फाइंड साइन
पाई बाई फाइव प्लस आई कॉस पाई बाई फाइव, और इसकी पावर फाइव की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसकी पावर फाइव लेना है, लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे क्या खास बात दिया है कि आई के साथ में कॉस दिया हुआ है। आई के साथ में कॉस दिया है मतलब ये पोलर फॉर्म में अभी तो नहीं है, तो हमको आई के साथ में हमेशा साइन लाना पड़ेगा। आई के साथ में साइन लाना है तो फिर अभी क्या करने का, तो सीधा सीधा क्या करो आप, इसको माइनस आई कॉमन ले लो। दूसरा तरीका, मैं फर्स्ट तरीका पहले बताता हूँ, फर्स्ट वे जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी है। तो आप आई कॉमन ले लो, आई कॉमन लेते ही, आई कॉमन ले लिया तो ये कॉस पाई बाई फाइव बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई स्क्वायर होगा तो प्लस वन बना देगा ना, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फाइव। गॉट द पॉइंट। और अब इस पूरे की पावर फाइव कर लीजिए, इस पूरे की पावर फाइव। गॉट द पॉइंट। इसको मैंने रीअरेंज किया तो देखो आई की पावर फाइव तो कॉमन आ गया, और अब यहाँ पे कॉस पाई फाइव माइनस आई साइन पाई बाई फाइव और इसकी पावर फाइव, ये ले लिया। अब फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डी मोर्स थ्योरम से, आई की पावर फोर इंटू आई, मतलब ये सिंपली आई हो जाएगा, सिंपली आई हो जाएगा। आई की पावर फोर तो वन होता है, तो ये आई, तो ये अब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस पाई माइनस साइन पाई, कॉस पाई माइनस वन होता है और साइन पाई जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू माइनस वन दैट इज माइनस आई। ये सिंपली इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं उसका भी वैल्यू बता देता हूँ कैसे करना है। आपने इसके पहले देखा था जब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे, तो इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फाइव, साइन को लिख दिया प्लस आई, ये कॉस को मैं साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई फाइव लिख देता हूँ। तो वो जो मेरा प्रॉब्लम था ना, डी मोर थ्योरम तभी यूज होगा जब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पोलर फॉर्म में तभी कहलाता है जब आई के साथ में साइन होता है। तो ये काम तो हो गया, ये काम हो गया। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके रख लो, तो ये हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाई टेन, करेक्ट है, प्लस आई साइन थ्री पाई बाई टेन, ये हो गया। अब आप क्या करो, पावर फाइव लगा दो, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आई के साथ में साइन आ गया, पोलर फॉर्म में ये आ चुका है। तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस आई साइन थ्री पाई बाई टू। अब आपको मालूम है पाई बाई टू के और मल्टीपल्स में, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू में कॉस जीरो हो जाता है, और साइन थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है मालूम है, साइन का करो आपको मालूम है, ये पाई बाई टू होता है और ये माइनस पाई बाई अपना थ्री पाई बाई टू होता है, ठीक है। पाई बाई टू में वैल्यू वन आती है, थ्री पाई बाई टू में वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन। तो सिंपली जीरो प्लस आई इंटू माइनस वन दैट इज माइनस आई। सो दिस इज द अनदर वे। जो भी वे आपको अच्छा लगता है आप उसको नोट कर लीजिए, दोनों वे नोट कर लीजिए, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट इट। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फाइन, अब इस प्रॉब्लम्स को देखना और इम्पोर्टेंट होना, यहाँ से ये बेसिक प्रॉब्लम हो जाता है और कई प्रॉब्लम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव दैट इसको क्लियर करेंगे, वन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस वन माइनस आयोटा की पावर एन दैट इज इक्वल टू की पावर एन बाई टू प्लस वन इंटू कॉस एन पाई बाई फोर। इसको चेकआउट करेंगे और इसको एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ले लेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम जनरेट होकर आपको पूछे जाएंगे कई तरीके से, ठीक है। वन प्लस आयोटा की पावर एन निकालना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर एन निकालना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आइलर या पोलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक सा। तो आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो देखो वन प्लस आयोटा मतलब ये वन कॉमा वन है, मतलब आपका आर तो रूट टू हो जाएगा, और थीटा जो हो जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ वन मतलब पाई बाई फोर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई इशू नहीं है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे लिखेंगे आप, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बोले कैसे लिखेंगे, रूट टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर, ये लिखेंगे आप, और इस पूरे की पावर एन, ये हो गया, ये बात हो गई। अच्छा, वैसे इसमें आते क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसको आप लिखेंगे रूट टू
कॉस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, सीधा माइनस आई साइन पाई बाई 4 लिख दीजिए और इस पूरे की पावर n, ठीक है। अभी तक के जितनी अलजेब्रा आपने पढ़ी सब आपको याद हो गई है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका आर्गूमेंट थीटा है तो इसका आर्गूमेंट माइनस थीटा होगा। कॉस का जो माइनस है कोई इफेक्ट नहीं जानेगा और साइन का जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। या आप कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो √2 की पावर n यहाँ पे हो गई, ठीक है, √2 की पावर n, और ये हो जाएगा बेटा कॉस n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ आते हैं फिर से √2 की पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस n पाई बाई 4 माइनस आई साइन n पाई बाई 4। अब आ गए इंटरेस्टिंग चीज पे, और इसके बेस पे आप कई प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जब आप ऐड करते हैं तो देखो ये प्लस में और ये प्लस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस के साथ में और ये माइनस के साथ में, तो ये वाला पोर्शन कटने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स √2 की पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 4, करेक्ट है कि नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर n बाई 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4, 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 4 है इसको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूफ कर लिया आपने, देख लिया कि डी मोर्स थ्योरम, पोलर फॉर्म, ये हम कैसे यूज करते हैं, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको यूज करके हाउ वी कैन सिंप्लीफाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो 1 प्लस आई की पावर n, दिस पावर n निकालना है, दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू बी रिटन इन पोलर फॉर्म, okay, so just try to find out this modulus. The modulus is √2 and the argument is pi by 4, as this complex number lies in the first quadrant, so therefore this can be written as √2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4. Now we can find out any power of this complex number, as this complex number written already in the polar form, and as this is 1 minus I which is lying in the 4th quadrant, or you can say that this is the conjugate of this complex number. So conjugate of complex number, that means the modulus will be same but the argument will be minus, that is negative. So therefore this can be simply written as √2 into cos pi by 4 minus I sin pi by 4 to the power n. Now you can use De Moivre's theorem. So finally this can be written in that way. Now we can very easily add these two, ये प्लस और ये माइनस के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब आते रिजल्ट्स के ऊपर। अब आप इसको देखिए, प्योरली रियल आ गया, प्योरली रियल। तो इसी क्वेश्चंस को अब अगर मैं माइनस करता हूं तो 1 प्लस आयोटा की पावर n माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर n करूंगा, तो देखो अब ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू साइन आयोटा के साथ में, आयोटा साइन n पाई बाई 4। प्लीज इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, और ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये प्योरली रियल आ गया, ये प्योरली इमेजिनरी आ गया। जब प्लस करते तो ये रिजल्ट है, माइनस करते तो ये रिजल्ट है। प्लीज नोट इट, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ। अभी आपने यूज कर लिया, जब ये दोनों को प्लस करते हैं तो प्योरली रियल आता है, और इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते तो प्योरली इमेजिनरी आता है। De Moivre's थ्योरम से हमने इसको चेकआउट कर लिया, फाइन। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ आपको, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका दे सकते हैं। z इक्वल टू √3 बाई 2 प्लस I बाई 2 एंड पावर इज 5 प्लस √3 by 2 minus I by 2 and power 5. Then which of the option is correct? Real part of z equal to 0, imaginary part of z equal to 0, real part of z greater than 0, imaginary part of z greater than 0. D, real part of z is greater than 0 and imaginary part of z is less than 0. ऐसे दैट वो जो प्रॉब्लम अभी बताया था वो एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, उसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम
जनरेट कर सकते हैं। तो टाइम सेव करना है आपको, अगर वो प्रॉब्लम मालूम है तो अपने आंसर निकाल लिया है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और उसकी पावर हम निकाल सकते हैं पोलर फॉर्म में। लेकिन इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो प्योरली रियल आता है। प्योरली रियल आता है मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया। पावर अब 5 कर दीजिए, पावर 7 कर दीजिए, पावर 8 कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। माइनस में भी कर सकते हैं, मतलब सभी में ये 8 सेम रहेगा, -8 कोई इश्यू नहीं है। करेक्ट है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स। हाँ, बस अब ये प्लस की जगह अगर मैंने माइनस कर दिया तो अब ये आंसर आएगा। जब मैं माइनस करता हूँ तो प्योरली इमेजिनरी आता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो वो सारा सिंप्लीफिकेशन करने की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वो प्रॉब्लम्स देखा तो वो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जिसको लेके प्रॉब्लम्स जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं नए नए प्रॉब्लम्स। करेक्ट है ना। प्लीज अब दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट वन, ये भी इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। फाइंड थीटा इफ, देखना इसको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा अप टू दी, मल्टीप्लाइड करते चल रहे, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब ये प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा बाय यूजिंग द De Moivre's theorem. See, this is cos theta plus I sin theta. This is in fact cos theta plus I sin theta की power 2. This is cos theta plus I sin theta की power 3. Like that, this is cos theta plus I sin theta की power n. Correcting by using the De Moivre's theorem. So the base is same. Now simply use the laws of indices. So this is cos theta plus I sin theta power 1 plus 2 plus 3 up to the n, that is equal to 1. You can use this result. This is cos theta plus I sin theta, that is n into n plus 1 divided by 2, that is equal to 1. Again use the De Moivre's theorem. Again use the De Moivre's theorem. N into n plus 1 by 2 into theta plus I sin of n into n plus 1 by 2 into theta. Okay, and that is equal to 1. 1 can be written as 1 plus iota into 0. So now these are the two equal complex numbers. Just we have to compare with the real part and imaginary part. तो real part and imaginary part के हिसाब से इस इक्वेशन में कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो यही पहले लिख देता हूँ मैं, cos of n into n plus 1 by 2 theta, that will be 1, and next one is sin of l into n plus 1 by 2 into theta, that will be 0. तो अब ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो cos थीटा 0 कब होता है, जब n into n plus 1 by 2 into theta, that will be n pi, that will be n pi. n pi के लिए साइन 0 जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, n पाई के लिए 0 है, लेकिन इस n पाई के लिए यहाँ पर आपको 1 आना चाहिए। 1 आता कब है, 1 आता है 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। पाई पे तो -1 आ जाएगा, 3 पाई पे -1 आ जाएगा, इसीलिए आप इसको 2n पाई लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो 2n पाई लिख देते हैं तो अब फाइनली थीटा आ जाएगा। फाइनली थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4n पाई divided by n into n plus 1. Of course n belongs to z. ये नोट कर लीजिए, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा De Moivre's थ्योरम। आई होप दैट ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं रखा हुआ है और आप ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी, De Moivre's थ्योरम, ये सारे चीज़ एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स मेंस लेवल पे भी इनके क्वेश्चन आ जाते हैं।